قومی اسمبلی کے 6 اور صوبائی اسمبلی کے 7 حلقوں میں ضمنی انتخابات کل ہوں گے۔ تمام تیاریاں مکمل۔ پولنگ صبح 8 بجے سے شام 5 بجے تک بغیر کسی وقفے کے جاری رہے گی۔ بیلٹ پیپر سمیت انتخابی مواد پولنگ عملے کے حوالے کر دیا گیا۔ امن و امان برقرار رکھنے کے لیے انتخابی حلقوں میں پاک فوج، سول آرمڈ فورسز اور پولیس تعینات ہوگی۔ قازقستان، ازبکستان، افغانستان، پاکستان ریل منصوبے پر ابتدائی کام جاری۔ اسلام آباد، تہران اور استنبول ٹرین کا کام بھی جلد آغاز ہوگا۔ 54 ریلوے اسٹیشنز ڈیجیٹائز اور 155 اسٹیشنز شمسی توانائی پر منتقل۔ فریٹ آن لائن بکنگ سسٹم بھی متعارف۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کو ریلویز امور سے متعلق جائزہ اجلاس میں بریفنگ۔ وزیر اعظم کی ریلوے منصوبوں میں سرکاری اور نجی شراکت داری ماڈل اختیار کرنے کی ہدایت۔ ریلوے نظام ملکی معیشت اور مواصلات کے حوالے سے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ علاقائی روابط اور بین الاقوامی ٹرین لنکس کے منصوبوں میں ماہرین کی خدمات حاصل کی جائیں۔ ریلوے نظام کی بحالی کے لیے اقدامات قابل تحسین ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف۔ بنوں میں سیکیورٹی فورسز کے فتنۃ الہندوستان کے خارجی دہشت گردوں کے خلاف کامیاب آپریشنز۔ 3 اہم دہشت گرد کمانڈر سمیت بھارتی حمایت یافتہ 25 خارجی جہنم واصل، 1 سہولت کار گرفتار۔ بنوں کے نواحی علاقے بسیا خیل میں واقع پل کو اڑانے کی کوشش ناکام بنا دی گئی۔ 8 سے 10 کلو بارود سے بھری بالٹی سے بنائی گئی دیسی IED بم ڈسپوزل اسکواڈ نے ناکارہ بنا دی۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا کامیاب کارروائیوں پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ بھارت کے لیے ایک اور دھچکا۔ صدر ٹرمپ اور امریکی کانگریس کے بعد فرانسیسی کمانڈر نے بھی پاکستان کے ساتھ جنگ میں بھارتی شکست کی تصدیق کر دی۔ جنگ میں رافیل طیارے پاکستانی فضائیہ کے سامنے بے بس نظر آئے۔ خرابی رافیل طیاروں میں نہیں، بھارتی پائلٹس میں تھی۔ پاکستانی فضائیہ نے صورتحال انتہائی منظم اور مؤثر انداز میں سنبھالی۔ بھارتی رافیل پاکستانی فضائیہ کی حکمت عملی، مضبوط دفاع اور بروقت رد عمل کے باعث گرے۔ فرانسیسی نیول ایئر بیس کے کمانڈر کیپٹن یوکنے کی گفتگو۔ دبئی ایئر شو میں لڑاکا طیارے تیجس گر کر تباہ ہونے پر بھارتی عوام کا شدید رد عمل۔ بھارتی فضائیہ کی نااہلی اور قیادت کی غفلت پر شدید تنقید۔ بھارتی ایئر چیف کی پیشہ ورانہ نااہلی پر فوری برطرفی کا مطالبہ۔ تیجس کی تباہی پوری دنیا کے سامنے ہماری بڑی توہین ہے۔ تیجس کے حادثے نے میک ان انڈیا کے کھوکھلے دعووں اور کرپشن زدہ دفاعی صنعت کا پردہ چاک کر دیا۔ بھارتی عوام کا سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر رد عمل۔ برسلز میں پاکستان اور یورپی یونین کے درمیان 7ویں اسٹریٹجک ڈائیلاگ، تعاون مضبوط بنانے اور عملی مواقع تلاش کرنے پر اتفاق۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور یورپین یونین کے نمائندہ امور خارجہ کی مشترکہ صدارت کی۔ جنوبی ایشیا، افغانستان اور مشرق وسطی سمیت خطے اور عالمی صورتحال پر تبادلہ خیال، مشترکہ اقدار اور کثیر الجہتی شراکت داری کے عزم کا اعادہ۔ آپریشن بنیان مرصوص نے کامیابی کے بعد پاکستان دنیا میں ہر مقام پر سربلند۔ میرٹ، شفافیت اور بروقت فیصلہ سازی گڈ گورننس کے رہنما اصول۔ پنجاب میں کھربوں روپے کے منصوبے جاری، کرپشن کی کوئی شکایت نہیں۔ احتساب اور جواب دہی کے احساس کے بغیر گڈ گورننس ممکن نہیں۔ گالم گلوچ اور الزام تراشی کا جواب کارکردگی کے بیانیے سے دیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی نیشنل ڈیفنس سیکیورٹی کی 27ویں نیشنل سیکیورٹی کے شرکاء سے گفتگو۔ مریم نواز نے شرکاء کے سوالوں کے جواب بھی دیے۔ فیک نیوز دنیا کا سب سے بڑا چیلنج۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر مؤثر حکمت عملی سے فیکٹ چیکنگ کا نظام وضع کرنا ناگزیر۔ D8 رکن ملکوں کو متفقہ میڈیا پالیسی کے ذریعے غلط معلومات کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ وزیر اطلاعات عطاءاللہ تارڑ کی باکو میں سیکریٹری جنرل D8 اقتصادی تعاون کے سفیر سے گفتگو۔ باہمی تعاون، میڈیا کے شعبے میں تعلقات اور فیک نیوز سمیت اہم عالمی امور پر تبادلہ خیال۔ افغان طالبان کی سرپرستی میں فتنۃ الخوارج کے دہشت گرد عزائم عالمی سطح پر بے نقاب۔ سلامتی کونسل میں ڈنمارک اور روس نے وسطی اور جنوبی ایشیا میں فتنۃ الخوارج کو سنگین خطرہ قرار دے کر پاکستانی موقف پر مہر ثبت کر دی۔ افغانستان میں دہشت گرد تنظیموں کی موجودگی سے پڑوسی ممالک میں عدم استحکام کے خدشات بڑھ گئے۔
افغانستان میں 6000 TTP دہشت گرد موجود ہیں جو پاکستان پر افغان زمین سے بڑے حملوں کے ذمہ دار ہیں۔ اقوام متحدہ میں روس اور ڈنمارک کے مستقل مندوبین کا اظہار خیال۔ پاکستان اور افغانستان میں تجارتی بندش، مربوط حکمت عملی پاکستان کے لیے فائدہ مند۔ تجارتی بندش سے سمگلنگ نیٹ ورک ٹوٹیں گے، اسلحہ اور منشیات کی ترسیل رکے گی۔ چند ہفتوں میں افغانستان کے لیے تمام سرحدوں کا مجموعی نقصان $200 ملین سے تجاوز کر گیا۔ ایران کے راستے تجارتی لاگت 50 سے 60% بڑھ گئی، ہر کنٹینر پر $2500 اضافہ کرایہ لگا۔ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے نام پر سمگلنگ کا سامان پاکستان میں داخل ہوتا رہا۔ پاکستان کے پاس سی پیک کے تحت براہ راست زمینی راستے موجود ہیں۔ افغانستان سے تجارتی بندش عام پاکستانی کی زندگی پر کوئی اثر نہیں ڈالتی۔ معرکہ حق میں پاکستان کے ہاتھوں عبرتناک شکست کے عالمی اعتراف پر بھارت میں صف ماتم۔ آپریشن سندور کی ناکامی سے متعلق امریکی کانگریس رپورٹ پر بھارتی رہنماؤں کی مودی پر شدید تنقید۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ پہلگام میں کوئی دہشت گرد حملہ نہیں ہوا۔ پاکستان بھارت جنگ میں پاکستان کی جیت ہوئی۔ پاکستان نے 7 بھارتی طیارے زمیں بوس اور متعدد اہداف کو نشانہ بنا کر عسکری فتح حاصل کی۔ اپوزیشن جماعت کانگریس کے رہنما جے رام رمیش کا شدید رد عمل۔ بھارتی گودی میڈیا نے اپنے ملک کی نااہلی چھپانے کے لیے تیجس حادثے کا ذمہ دار امریکی انجن کو قرار دے دیا۔ تیجس امریکی جنرل الیکٹرک کے بنائے انجن سے چلتا ہے۔ جنرل الیکٹرک بھارت کا کبھی دوست نہیں رہا۔ ہم نے $1 ارب ادا کیے۔ GE404 انجن ہمیں 2 سال پہلے مل جانا چاہیے تھا۔ ریٹائرڈ میجر جنرل بخشی اور ارنب گوسوانی کی بھارتی دفاعی کمزوری چھپانے کی کوشش، امریکہ پر ملبہ ڈالنا بار آور ثابت نہ ہوا۔ حادثہ بھارتی دفاعی صنعت کی ناکامی کا واضح عکاس۔ مقبوضہ کشمیر میں آبادی کا تناسب بدلنے کے لیے قابض انتظامیہ کے اوچھے ہتھ کنڈے۔ کشمیری مسلمانوں کے گھروں، زمینوں اور دیگر املاک کی ضبطگی کا سلسلہ تیز۔ پلوامہ میں ایک اور کشمیری کی جائیداد ضبط کر لی گئی۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کی بھارتی جارحانہ کارروائیوں کی شدید مذمت۔ فاشسٹ مودی کشمیریوں کو بڑے پیمانے پر انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بنا رہا ہے۔ قابض انتظامیہ کی مذموم کارروائیوں سے مرعوب نہیں ہوں گے حریت قیادت۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور نیو یارک کے نومنتخب میئر زہران ممدانی کی ملاقات۔ میئر نیو یارک سے بھرپور تعاون کریں گے۔ مشرق وسطیٰ میں میری کوششوں سے امن قائم ہوا۔ صدر ٹرمپ کی ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو، اختلافات کی بجائے مشترکہ مفادات پر گفتگو ہوئی۔ مل کر نیو یارک کی ترقی کے لیے کام کریں گے، زہران ممدانی۔ امریکی صدر نے یوکرین کو امن معاہدہ قبول کرنے کی ڈیڈ لائن دے دی۔ یوکرین جمعرات تک امریکہ کا امن معاہدہ قبول کرے، صدر ڈونلڈ ٹرمپ۔ روس کی یوکرین سے جنگ بندی کے لیے ٹرمپ کے امن منصوبے کی حمایت۔ یوکرین معاہدہ قبول کرنے میں تذبذب کا شکار۔ امریکی امن منصوبے کی منظوری نہ دینے سے یوکرین اپنی آزادی، وقار یا واشنگٹن کی حمایت کھو سکتا ہے۔ مشکل ہفتہ ہے، سخت فیصلے کرنا ہوں گے، قوم متحد رہے، یوکرینی صدر۔ جنگ بندی کے باوجود صہیونی بربریت نہ تھم سکی۔ خان یونس اور غزہ کے مشرقی علاقوں پر شدید حملے، مزید 7 فلسطینی شہید، 30 سے زیادہ زخمی۔ مغربی کنارے میں اسرائیلی فورسز کی کارروائیاں، متعدد فلسطینی گرفتار کر لیے۔ لیبنان کے مختلف علاقوں پر بھی اسرائیلی فضائی حملے جاری، 1 شخص جاں بحق، متعدد زخمی۔ اسلام آباد کی فضائیں تلاوت کلام پاک سے معطر کرنے کے لیے بین الاقوامی مقابلہ قرأت کی تیاریاں حتمی مراحل میں داخل۔ عالمی مقابلہ قرأت 24 سے 27 نومبر تک جاری رہے گا۔ 40 سے زائد ممالک کے قاری پاکستان آ چکے ہیں۔ مسقط میں سنوکر ٹیم ورلڈ کپ، پاکستان نے بھارت کو شکست دے کر فائنل میں جگہ بنا لی۔ سیمی فائنل میں پاکستان کے 1 کے مقابلے میں 3 فریم سے کامیابی۔ محمد آصف اور اسجد اقبال پر مشتمل جوڑی نے بھارت کے پنکج اڈوانی اور برجیش دمانی کو شکست سے 2-4 کیا۔ فائنل میں پاکستان کا مقابلہ ہانگ کانگ، چائنا سے ہوگا۔ Picked up and dispatched. Cleans him up. Slip in place. Oh!
beauty! Oh, that's gone. That's massive, is it? Not to be. That's beautifully held. रावलपिंडी में 3 मुल्की T20 सीरीज पाकिस्तान की मुसलसल दूसरी कामयाबी, श्रीलंका को 7 विकेटों से हरा दिया। श्रीलंका के 20 ओवर्स में 7 विकेटों पर 128 रन, मोहम्मद नवाज की 3 विकेटें। ग्रीन शर्ट्स ने हदफ 15.3 ओवर्स में 3 विकेटों पर हासिल कर लिया। साहिबजादा फरहान की जारहाना इनिंग्स 80 रन पर नॉट आउट रहे। रवां साल T20 क्रिकेट में छक्कों की सेंचुरी भी कर ली। सीरीज PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। Oh, Smashed away from head. Guides it and gets the 100. Short, just 69 balls. मिचेल स्टार्क की तबाहकुन बॉलिंग और ट्रेविस हेड की धुआंधार सेंचुरी। एशेज सीरीज का पहला टेस्ट 2 दिन में ही खत्म। पर्थ टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया की इंग्लैंड के खिलाफ 8 विकेटों से कामयाबी। 205 रन का हदफ 28.5 ओवर्स में 2 विकेटों पर हासिल किया। ट्रेविस हेड की 123 रन की इनिंग्स, मार्नस लबुशन 51 रन पर आउट। मैच में 10 विकेटें हासिल करने वाले मिचेल स्टार्क प्लेयर ऑफ द मैच। एशेज सीरीज देखिए PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। दोहा में एशिया कप राइजिंग स्टार्स फाइनल में कल पाकिस्तान शाहीन्स और बांग्लादेश ए होंगे मध्य मुकाबिल। मुकाबला शाम 7:30 बजे PTV नेशनल पर बराह रास्त। इवेंट में शाहीन्स अब तक नाकाबिले शिकस्त। Cheeky, effective. छठे इस्लामी यकजहती गेम्स रंगारंग तकरीब के साथ सऊदी अरब में इख्तिताम पसीर। तुर्की 155 मेडल्स के साथ सरे फहरिस्त रहा। तुर्की ने 72 सोने, 44 चांदी और 39 कांसी के तमगे जीते। उज्बेकिस्तान 94 मेडल्स के साथ दूसरे और ईरान 81 मेडल्स के साथ तीसरे नंबर पर रहा। पाकिस्तान ने इवेंट में 1 सोने, 1 चांदी और 3 कांसी के तमगे हासिल किए। इस्लामी यकजहती गेम्स PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाए गए। بثقة أكبر مستندين إلى ما تحقق من نجاح ومؤمنين بأن الرياضة قادرة على أن تكون جسرا للتواصل. هذا الصدد تسليم راية الاستضافة. और शायकीन अदब के लिए कराची में जारी 2 रोज़ा अदब फेस्टिवल और मुल्क में मौसीकी के फरोग में PTV के रोशन किरदार की कहानी। लातादाद गुलकारों और मौसीकारों ने PTV के जरिए अपने फन को जिला बख्शी। खुसूसी रिपोर्ट्स आज के खबरनामे का हिस्सा। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज पर खबरनामे में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। मैं हूं नासिया कमल। खेलों की खबरों में मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अनीस। और मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। आप रहिए PTV न्यूज के साथ। तालीम हर बच्चे का बुनियादी हक। 2 बच्चों के आज एक फैसले से अपने वसाइल और खानदान में तवाज़ुन की बुनियाद रखें और खुशहाल पाकिस्तान का ख्वाब ताबीर करें। खानदानी मनसूबाबंदी और सेहत से मुतालिक मुफ्त मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत व आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं। अपनों के रोशन कल के लिए दानिशमंदाना फैसला करें आज। मतवाजन खानदान, खुशहाल पाकिस्तान। डायरेक्टरेट जनरल बहबूद आबादी, महकमा सेहत व आबादी, हुकूमत पंजाब। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त दुरुस्त। ब्रेक के बाद खबरनामे में खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताएं, कौमी असम्बली के 6 और सूबाई असम्बली के 7 हलकों पर ज़िमनी इंतखाबात कल होंगे। पोलिंग सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगी। पोलिंग अमले को बैलेट पेपर समेत इंतखाबी मवाद हवाले कर दिया गया है। कौमी असम्बली के हल्का NA 18 हरीपुर, NA 129 लाहौर, NA 143 साहिवाल, NA 185 DG खान, NA 96 फैसलाबाद और NA 104 फैसलाबाद में वोट डाले जाएंगे। सूबाई असम्बली के हल्कों PP 98, PP 115 और PP 116, जबकि PP 73 सरगोदा, PP 87 मियांवाली, PP 203 साहिवाल और PP 269 मुजफ्फरगढ़ में राय दहिंदगान वोट डालेंगे। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी ड्यूटी के दौरान पाक फौज और सिविल आर्म फोर्सेस के लिए
لیے ضابطہ اخلاق جاری کر دیا ہے۔ پولیس پہلی، سول آرم فورسز دوسری اور پاک فوج تیسری رسپونڈ ہوگی۔ فوجی انتہائی حساس پولنگ سٹیشنز کے باہر تعینات ہوں گے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے پاکستان ریلوے کے علاقائی روابط اور بین الاقوامی ٹرین لنکس کے منصوبوں کے حوالے سے بین الاقوامی معیار کے قانونی اور معاشی ماہرین کی خدمات حاصل کرنے کی ہدایات کی ہیں۔ تفصیل بتا رہے ہیں شاہ رخ شفیع۔ پاکستان ریلویز کے امور کے جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ ریلوے نظام کی بحالی کی طرف اٹھائے جانے والے اقدامات لائق تحسین ہیں۔ انہوں نے پاکستان ریلوے کی بحالی اور اپ گریڈیشن کے حوالے سے وزیر ریلوے حنیف عباسی اور ان کی ٹیم کی ستائش کی۔ انہوں نے ہدایت کی کہ ریلوے کی پراپرٹی اور زمین کے معاملات پر پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ماڈل اختیار کیا جائے۔ اجلاس کو پاکستان ریلویز کی بہتری کے حوالے سے اٹھائے جانے والے اقدامات پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ پاکستان ریلوے کی ڈیجیٹائزیشن کے حوالے سے رابطہ کے ساتھ ڈیجیٹل پورٹلز کام کر رہے ہیں۔ 56 ٹرینوں کو رابطہ پر منتقل اور 54 ریلوے اسٹیشنز کو ڈیجیٹائز کیا جا چکا ہے۔ کراچی، لاہور، راولپنڈی اور فیصل آباد کے ریلوے اسٹیشنوں پر مفت وائی فائی کی سہولت فراہم کی جا چکی ہے، جبکہ مزید 48 ریلوے اسٹیشنوں پر 31 دسمبر تک یہ سہولت فراہم کر دی جائے گی۔ اجلاس کو مزید بتایا گیا کہ فریٹ آن لائن بکنگ سسٹم متعارف کیا گیا ہے۔ کراچی سٹی ریلوے اسٹیشن پر ڈیجیٹل ویئنگ برج کا پائلٹ پروجیکٹ شروع کیا گیا ہے۔ اگلے مرحلے میں یہ سہولت کراچی چھاؤنی، پورٹ قاسم، لاہور اور راولپنڈی کے ریلوے اسٹیشنوں پر بھی فراہم کی جائے گی۔ راولپنڈی ریلوے اسٹیشن میں مصنوعی ذہانت سے کام کرنے والے 148 سرویلنس کیمرے نصب کیے گئے ہیں۔ ریلوے اسٹیشن پر بینکوں کی ATM مشینز، جبکہ صفائی ستھرائی کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے اسے آؤٹ سورس کیا گیا ہے۔ بڑے ریلوے اسٹیشنوں پر مسافروں کے لیے اعلیٰ معیار کی انتظار گاہیں اور انفارمیشن ڈیسک بنائے گئے ہیں۔ اسٹیشنز پر اشیاء کی فراہمی کے معیار کو بہتر بنانے کے حوالے سے چاروں صوبوں کی فوڈ اتھارٹیز کو رسائی دی گئی ہے۔ اجلاس کو آگاہ کیا گیا کہ 4 ٹرینوں کو آؤٹ سورس کیا جا چکا ہے، جبکہ جلد ہی مزید 11 ٹرینوں کو آؤٹ سورس کیا جائے گا۔ اس آؤٹ سورسنگ کے باعث 8.5 ارب روپے کا اضافی ریونیو متوقع ہے۔ 40 لگیج اور بریک وینز کو بھی آؤٹ سورس کیا گیا ہے، جس کے باعث 82 کروڑ روپے اور 2 کارگو ایکسپریس ٹرینوں کی آؤٹ سورسنگ کے باعث 6.3 ارب روپے کا اضافی ریونیو متوقع ہے۔ لاہور، اسلام آباد اور زخیل میں قائم ریلوے کے ڈرائی پورٹس بھی آؤٹ سورس ہو رہے ہیں، جبکہ 155 ریلوے اسٹیشنز کو شمسی توانائی پر منتقل کیا جا چکا ہے۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ ریلوے کنسٹرکشنز پاکستان لمیٹڈ، پاکستان ریلوے فریٹ ٹرانسپورٹیشن کمپنی اور پاکستان ریلوے ایڈوائزری اینڈ کنسلٹنسی سروس کو بند کیا جا چکا ہے۔ تھر ریل کنیکٹیویٹی کے منصوبے کے حوالے سے حکومت سندھ کے ساتھ مل کر کام کیا جائے گا۔ اجلاس کو آگاہ کیا گیا کہ اسلام آباد، تہران، استنبول ٹرین کا جلد آغاز ہوگا۔ قازقستان، ازبکستان، افغانستان، پاکستان ریل منصوبے کے حوالے سے بھی ابتدائی کام ہو رہا ہے۔ شاہ رخ شفیع، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ بنوں میں سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے مشترکہ آپریشن کرتے ہوئے بھارتی پراکسی فتنۃ الخوارج کے 8 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ ISPR کے مطابق 21 نومبر کو خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے ضلع بنوں میں بھارتی پراکسی فتنۃ الخوارج کے دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر مشترکہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا۔ آپریشن کے دوران شدید فائرنگ کے تبادلے کے بعد بھارتی سرپرستی میں سرگرم 8 دہشت گرد واصل جہنم کر دیے گئے۔ مارے گئے دہشت گردوں سے اسلحہ اور بھاری مقدار میں گولہ بارود بھی برآمد ہوا۔ دہشت گرد سیکیورٹی فورسز، قانون نافذ کرنے والے اداروں اور بے گناہ شہریوں پر متعدد حملوں اور ٹارگٹ کلنگ میں ملوث تھے۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ضلع بنوں میں فتنۃ الخوارج کے دہشت گردوں کے خلاف کامیاب کارروائی پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ آپریشن میں 8 دہشت گردوں کو ہلاک کرنے پر انہوں نے کہا کہ بھارتی سرپرستی میں سرگرم منظم دہشت گردوں کے نیٹ ورکس کا خاتمہ اولین ترجیح ہے۔ خوارج کے خلاف مربوط کارروائیاں قومی سلامتی کو مزید مضبوط بنا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ قوم دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی افواج کے ساتھ کھڑی ہے، ملک سے ہر قسم کی دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار اور امور خارجہ کے حوالے سے یورپین یونین کے نمائندہ اعلیٰ کایا کلاس کی مشترکہ صدارت میں پاکستان EU اسٹریٹجک ڈائیلاگ کا 7واں دور برسلز میں ہوا۔ مذاکرات میں 2019 کے اسٹریٹجک انگیجمنٹ پلان کے تحت جاری تعاون کا جامع جائزہ لیا گیا۔ پاکستان اور یورپی یونین نے اسٹریٹجک ہم آہنگی رکھنے والے شعبوں میں تعاون مزید بڑھانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ نائب وزیر اعظم نے پاکستان کے لیے GSP+ کی اہمیت اور یورپی یونین کی مسلسل حمایت کو سراہا۔ یورپی یونین کی جانب سے پاکستان میں جمہوریت، گورننس، قانون کی حکمرانی، توانائی، تجارت، سرمایہ کاری اور انسانی حقوق کے شعبوں میں معاونت کا اعتراف کیا گیا۔ دونوں جانب سے علاقائی اور عالمی سلامتی کی صورتحال پر بھی تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ جنوبی ایشیا کی صورتحال پر گفتگو کرتے ہوئے نائب وزیر اعظم اور وزیر
वज़ीर ख़ारजा सेनेटर इसाक डार ने मुज़ाकरात, सिफारतकारी, बैनुल अक़वामी क़वानीन और मुआहिदों की पासदारी पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ को उजागर किया। पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के साथ बाहिमी मफाद पर मबनी पुरअमन और मुस्तहकम ताल्लुकात की अहमियत पर जोर दिया और अफ़गान तालिबान रजीम से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए जिम्मेदाराना किरदार अदा करने की तवक्को का इजहार किया। यूरोपीय यूनियन की जानिब से दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की मुस्तकिल और संजीदा कोशिशों और इलाकाई और आलमी अमन के लिए किरदार का एतराफ़ भी किया गया। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसाक डार ने बरोनाई दारुल इस्लाम के नायब वज़ीर ख़ारजा दातुसरी सिटिया हाजी एरवान से ब्रसल्स में मुलाकात की। उन्होंने बरोनाई दारुल इस्लाम के साथ पाकिस्तान की दो तरफ़ा ताल्लुकात की अहमियत का इयादा किया। मजबूत पाकिस्तान बरोनाई ताउन को तस्लीम करते हुए दोनों अतराफ ने तिजारत, सियाहत, राबते, IT और तालीम समेत मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात बढ़ाने के आज़म का इजहार किया। नायब वज़ीर आज़म सेनेटर मोहम्मद इसाक डार ने मदीना मुनव्वरा में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी दी। मुल्क और कौम की सलामती, खुशहाली और तरक्की के लिए दुआ की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के वफ़द ने लाहौर में मुलाकात की। वज़ीर आला मरियम नवाज ने वफ़द को हुकूमत पंजाब के अवामी फलाह के मंसूबों से आगाह किया। शुरका ने हुकूमत पंजाब के फलाही इक़दामात को सराहा। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में कामयाबी के बाद पाकिस्तान दुनिया में हर मुकाम पर सरबुलंद है। मरियम नवाज ने कहा कि सैलाब के असरात का सामना करने वाले न सिर्फ लाखों अफराद बल्कि मवेशियों को भी बचाया गया और बरवक्त तिब्बी इमदाद से मुतादी अमराज के फैलाव से भी महफूज रहे। उन्होंने कहा कि पंजाब में स्मोक गन स्प्रे, फसलों की बाक़ियात जलाने पर कंट्रोल और दीगर इक़दामात की वजह से स्मोक का असर कम हुआ। वज़ीर आला ने कहा कि मेरिट का निफाज और सिफारिश की नफ़ी हमारा नस्बुलैन है। इंशाअल्लाह 5 साल में पंजाब करप्शन फ्री होगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ और इक़्तिसादी ताउन के बारे में D8 के सेक्रेटरी जनरल के दरमियान बाकू में मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं ने D8 ममालिक के दरमियान ताउन बिलखुसूस मीडिया के शुबे में ताल्लुकात और फेक न्यूज़ समेत अहम आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा कि फेक न्यूज़ बड़ा चैलेंज है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मौसर हिकमत अमली के तहत फैक्ट चेकिंग का निज़ाम वज़ा करना ज़रूरी है। फेक न्यूज़ पर मुकम्मल कंट्रोल के बगैर D8 ममालिक का मुश्तरका बयानिया मजबूत नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि D8 के रुकन ममालिक को अपनी मुतफ़क़ा मीडिया पॉलिसी के जरिए गलत मालूमात का मुकाबला करना होगा। सकाफ़ती ताउन से खित्ते में हम आहंगी और मुस्बत इमेज का फ़रोग़ मुमकिन है। वफाकी वज़ीर ने आलमी सतह पर इक़्तिसादी तरक्की और खित्ते के अमन के लिए D8 के सेक्रेटरी जनरल के मौसर किरदार को सराहा। अब्दुल कादिर इमाम ने कहा कि D8 के रुकन ममालिक की कामयाबी एक दूसरे की तरक्की में मुआवनत पर मुनहसर है। आलमी सतह पर मजबूत और मुस्बत बयानी की तश्कील के लिए D8 के प्लेटफॉर्म पर ताउन को मज़ीद मुस्तहकम करना होगा। 11 अक्टूबर 2025 अफगानिस्तान के साथ तिजारत की बंदिश। पाकिस्तान का फैसला वक्ती रद्दमल नहीं बल्कि दहाइयों से जारी स्मगलिंग, गैर कानूनी तिजारत और सिक्योरिटी खदशात के खिलाफ बड़ा स्ट्रेटेजिक लाहे अमल है। तिजारती बंदिश का यह फैसला कौमी सलामती, माशी बका और रियासती रिट के लिए नहायत अहम और दूररस साबित होगा। तफसील बताएंगे मोहम्मद शाहिद अपनी रिपोर्ट में। अफगानिस्तान के साथ तिजारत की बंदिश ने जहां अफगानिस्तान की मईशत को हिलाकर रख दिया है, वहीं पाकिस्तान के लिए ये कदम रियासती रेट, माशी तहफ़्फ़ुज़ और सिक्योरिटी की नई बुनियाद रखता नजर आ रहा है। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान को हर साल 3.4 करोड़ रुपए का नुकसान स्मगलिंग से होता था। तोरहम की बंदिश से एक माह में अफगानिस्तान को $45 मिलियन का नुकसान हुआ, जबकि चंद हफ्तों के दौरान अफगानिस्तान के लिए तमाम सरहदों का मजमूई नुकसान $200 मिलियन से तजावुज कर गया है। बॉर्डर की बंदिश से 5000 से ज्यादा ट्रक रुके हुए हैं, जिनसे पाकिस्तान में आने वाला सामान और पल जाया हो गए। अदद शुमार के मुताबिक अफगानिस्तान के लिए ईरान के रास्ते तिजारती लागत 50 से 7% बढ़ गई और किराए की मद में हर कंटेनर पर $2500 इजाफी लागत आई। बॉर्डर की बंदिश से अफगानिस्तान में अद्वियात की तरसील भी मुतासिर हुई। याद रहे कि अफगानिस्तान की 50% से ज्यादा अद्वियात पाकिस्तान के रास्ते आती थी। स्मगलिंग की रोकथाम से 2 लाख से ज्यादा खानदान अफगानिस्तान में बेरोजगार हो गए। अफगानिस्तान से तिजारती बंदिश आम पाकिस्तानी की जिंदगी पर कोई खातिर खा असर नहीं डालती। पाकिस्तान के पास सीपेक की सूरत में बराह रास्त जमीनी रास्ते मौजूद हैं। पाकिस्तान का अफगानिस्तान की सरहद बंद करने का फैसला सिर्फ एक रद्द-ए-अमल नहीं बल्कि स्मगलिंग, दहशतगर्दी और गैर कानूनी तिजारत के खिलाफ एक जामा हिकमत अमली का हिस्सा है। अफगान तालिबान को फैसला करना होगा कि वो दहशतगर्दों को तहफ़्फ़ुज़ देंगे या पाकिस्तान के साथ मिलकर तरक्की के सफर में शामिल होंगे। मोहम्मद शाहिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद।
मार्का हक में पाकिस्तान के हाथों इबरतनाक शिकस्त के आलमी सतह पर एतराफ़ के बाद भारत में सफ़े मातम बिछ गई। अमरीकी कांग्रेस की रिपोर्ट में ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी के तज़किरे पर भारतीय रहनुमाओं ने मोदी को आड़े हाथों ले लिया। ऑपोजिशन जमात कांग्रेस के रहनुमा जयराम रमेश का कहना था कि अमरीकी कांग्रेस की रिपोर्ट में कहा गया है कि पहलगाम में कोई दहशतगर्द हमला नहीं हुआ। यूएस कांग्रेस की एक समिति है, वार्षिक रिपोर्ट वो पेश करते हैं। पेज 109 और पेज 108 चौंका देने वाली है। पेज 108 में कहता है कि पहलगाम में जो हुआ ये आतंकी हमला नहीं था, ये विरोधी हमला था, यानी कि ये टेररिस्ट नहीं थे, ये इंसर्जेंट थे। यूएस कांग्रेस की एक रिपोर्ट, विशेषज्ञों की रिपोर्ट कहता है कि ये इंसर्जेंट अटैक है। ये तो हमारी कूटनीति के लिए इतना बहुत बड़ा धक्का है। हमारे डेलीगेशन गए थे, सांसदों की डेलीगेशन, उस पर भी कुछ सवाल खड़े होते हैं। तो दूसरी बात और भी गंभीर, कहता है पाकिस्तान मिलिट्री सक्सेस, यानी कि पेज 109 में पाकिस्तान मिलिट्री सक्सेस ओवर इंडिया इन द 4-day क्रैश। रिपोर्ट कहती है कि पाक भारत जंग में पाकिस्तान की जीत हुई है। भारतीय शिकस्त पर मोदी को अपनी मुजरिमाना खामोशी तोड़नी चाहिए। उन्होंने कहा कि आलमी सतह पर पहलगाम हमले को इंतहा पसंदाना हमला कहना हमारे बयानिए पर बड़ा धचका है। अमरीकी कांग्रेस की रिपोर्ट हमारे सिफारती वफ्द की अहलियत पर भी सवालात उठाती है। ये रिपोर्ट जंगी मैदान में पाकिस्तान की भारत पर फतह की बात करती है। रिपोर्ट ने भारत के सारे झूठ और मुनाफिकाना मौक़िफ़ की धज्जियां उड़ा दी। मार्का हक में पाकिस्तान के हाथों भारत की पसपाई का एतराफ़ दुनिया पहले ही कर चुकी है। पाकिस्तान ने 7 भारतीय तैयारे ज़मीबोस और मुतअद्दिद अहदाफ को निशाना बनाकर अपनी अस्करी फतह को मनवाया। दुबई एयर शो में भारतीय तैयारा तेजस के गिरकर तबाह होने पर भारतीय अवाम शदीद गुस्से में आ गए। भारतीय अवाम ने तेजस की नाकामी पर फजाइया और क़यादत की नाअहली को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए एयर चीफ की फौरी बरतरफी का मुतालबा कर दिया। भारतीय अवाम ने एक्स पर कहा है कि फजाइया के सरबराह का पेशावराना नज़्म ज़ब्त के बजाय बॉलीवुड अंदाज के बयानात का यही नतीजा निकलता है। तेजस की तबाही पूरी दुनिया के सामने भारत की बड़ी तौहीन है। फजाइया के सरबराह को फौरन ओहदे से हटा देना चाहिए और अमरीकी कांग्रेस की रिपोर्ट के बाद मोदी को भी इस्तीफा दे देना चाहिए। और भारतीय गोदी मीडिया ने अपने मुल्क की नाअहली छुपाने के लिए तेजस हादसे की जिम्मेदारी अमरीकी इंजन पर डाल दी। जनरल रिटायर्ड बख्शी और अर्नब गोस्वामी ने भोंडी दलील देते हुए कहा है कि तेजस अमरीकी जनरल इलेक्ट्रिक के बनाए हुए इंजन से चलता है। जनरल इलेक्ट्रिक भारत का कभी भी दोस्त नहीं रहा। जनरल बख्शी ने कहा कि हमने $1 अरब नकद अदा किए हैं। GE404 इंजन हमें 2 साल पहले मिल जाना चाहिए था। भारतीय सरकार और उसका गोदी मीडिया अपनी इन हरकत की वजह से न सिर्फ जग हंसाई का सबब बनते हैं बल्कि भारतीय अवाम को भी असली मसाइल की तरफ से हटाते हैं। और यही नहीं, भारत के लिए एक और धचका। फ्रांसीसी कमांडर ने भी पाकिस्तान के साथ जंग में भारतीय शिकस्त की तस्दीक कर दी। मई में होने वाली पाकिस्तान के साथ जंग में भारत के राफेल तैयारे पाकिस्तानी फजाइया के सामने बेबस नजर आए। फ्रांस के शिमाल मगरबी हिस्से में वाक़ नेवल एयरबेस के कमांडर कैप्टन योकलोने ने मीडिया से गुफ्तगू में तस्दीक की है कि मसला राफेल तैयारे की तकनीकी कमजोरी नहीं था बल्कि असल खराबी भारतीय पायलट्स की महारत में थी। वाज़ेह रहे कि कैप्टन योकलोवास बेस की निगरानी करते हैं जो जौहरी सलाहियत रखने वाले राफेल स्क्वाड्रन, मुतादिद जंगी जहाज़ों, आबदोज़ों और जदीद तैयारों पर मुश्तमिल है। 25 बरस तक राफेल उड़ाने वाले तजुर्बाकार कमांडर ने एतराफ़ किया कि पाकिस्तानी फजाइया ने सूरत हाल इंतहाई मुनज़्ज़म और मौसर अंदाज में संभाली। इंडो पैसिफिक कॉन्फ्रेंस के एक बैनुल अक़वामी इजलास में कैप्टन लोने ने वाज़ेह किया कि भारतीय राफेल पाकिस्तानी फजाइया की हिकमत अमली, मजबूत दिफा और बर वक्त रद्द अमल के बाइस गिरे। उन्होंने बताया कि इस रात 140 से ज़ायद लड़ाका तैयारे फ़ज़ा में मौजूद थे जिसने सूरत हाल को पेचीदा बना दिया था, मगर पाकिस्तान ने इसे भारत से कहीं बेहतर अंदाज में हैंडल किया। कैप्टन लोने ने तस्दीक की कि राफेल का रडार सिस्टम नाकाम नहीं हुआ बल्कि इसे चलाने वाले की कमजोरी मसले की जड़ थी। उन्होंने ये भी बताया कि भारत अब समंदर में तैनाती के लिए राफेल के नेवल वर्जन में दिलचस्पी दिखा रहा है जो एयरक्राफ्ट कैरियर पर लैंडिंग के काबिल है और जौहरी हथियार भी ले जा सकता है। कुछ बात करेंगे मकबूजा आबादी कश्मीर की, जहां काबिज इंतजामिया ने कश्मीरियों के खिलाफ अपने 9 आबादियाती कार्रवाइयां जारी रखते हुए जिला पुलवामा के इलाके तराल में एक और कश्मीरी की जायदाद जब्त कर ली है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक पुलिस ने मुबशिर अहमद नामी कश्मीरी की जायदाद काले कानून UAPA के तहत जब्त कर ली। मोदी हुकूमत ने अगस्त 2019 में मकबूजा इलाके की खुसूसी हैसियत खत्म करने के बाद कश्मीरी मुसलमानों के घरों, जमीनों और दीगर अमलाक की जब्ती का सिलसिला तेज कर दिया है, जिसका वाहिद मकसद उन्हें माशी तौर पर गैर मुस्तहकम और इलाके में आबादी के तनासुब को तब्दील करना है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान
तर्जुमान ने श्रीनगर में जारी एक बयान में भारतीय जाबराना कार्रवाइयों की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि मोदी हुकूमत आज़ादी के मुतालबे की पादाश में कश्मीरियों को बड़े पैमाने पर इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बना रही है। उन्होंने जेलों में गैर कानूनी तौर पर नजरबंद कश्मीरी हुर्रियत रहनुमाओं और कारकुनों की हालत जार पर सख्त तशवीश का इजहार किया और आलमी बिरादरी से उनकी रिहाई के लिए किरदार अदा करने की अपील की। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने किराएदारी एक्ट के हालिया नफाज के खिलाफ जम्मू में अदालत के हाथे में एहतजाजी मुजाहरा किया। जम्मू खित्ते की पूरी कानूनी बिरादरी ने नए एक्ट की बाज़ दफात के खिलाफ शदीद गम गुस्से का इजहार करते हुए अपने काम काज का बाइकआउट किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा रुकन भारतीय पार्लियामेंट आगा रुअल्लाह मेहदी ने श्रीनगर में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कश्मीरी दफा 370 की मनसूखी के बाद खुद को बेख्तियार महसूस कर रहे हैं। उन्होंने जोर दिया कि हमें मोदी हुकूमत की कश्मीर दुश्मन पॉलिसियों का डटकर मुकाबला करना चाहिए। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल के हवाले से अपडेट करेंगे। इसराइल की जानिब से गजा जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जियां जारी हैं। रफा में इसराइली जारहियत में मजीद 7 फलस्तीनी शहीद हो गए। सिहोनी फौज ने गजा शहर के मशरकी इलाकों पर भी शदीद फ़ज़ाई हमले किए। गजा में शदीद ग़ज़ाई बहरान जारी है। हस्पताल, स्कूल और पनागाहें मुसलसल हमलों की जद में हैं। आलमी बिरादरी ने जंगबंदी की अपीलें जारी की हैं, लेकिन इसराइली कार्रवाइयाँ रुकने का नाम नहीं ले रहीं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से न्यूयॉर्क के नौमुंतखब मेयर ज़हरान ममदानी की व्हाइट हाउस में मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में अमरीकी सदर ने कहा कि उनकी ज़हरान ममदानी के बारे में राय तब्दील हो गई है। ज़हरान ममदानी नेतन्याहू को गिरफ्तार करेंगे या नहीं, इस बात पर नहीं हुई। ममदानी ने मुझे फाशिस्ट कहा, मैंने बुरा नहीं मनाया। मेरे हामियों ने भी उन्हें वोट दिया। उन्होंने कहा हम दोनों का मकसद जंगों का खात्मा है। उम्मीद है नौमुंतखब मेयर अच्छा काम करके कदामत पसंदों को हैरान कर देंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने मजीद कहा कि पाकिस्तान और भारत समेत दुनिया भर में 8 अमन मुआहिदे करवाए। मशरिक़ वस्ता में मेरी कोशिश से अमन कायम हुआ। गजा में मुस्तकिल अमन के लिए हमास को गैर मुसल्लह होना होगा। मेयर न्यूयॉर्क ज़हरान ममदानी ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात में इसराइली फंडिंग रोकने का मुतालबा कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में ज़हरान ममदानी ने कहा कि सिहोनी फौज फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी और हमारी हुकूमत उसे पैसे दे रही है। न्यूयॉर्क के अवाम चाहते हैं कि उनके टैक्स का पैसा तनाज़ात की बजाय बुनियादी ज़रूरियात पर खर्च हो। कुछ कौमी खबरों में आपको बताएंगे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर अवान ने कहा है कि वज़ीर आला पंजाब मुसलसल सूबे की तरक्की और खुशहाली के लिए कोशा हैं। अटक में मुस्लिम लीग नून के कारकुनों से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि यहाँ क्रिकेट स्टेडियम का इफ्तिताह किया जाएगा। मंसूबे से खेलों की सरगर्मियां बढ़ेंगी। इस इलाके में अस्पताल भी तामीर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मरियम नवाज अगली नस्लों के लिए सोच रही हैं। तालीम, सेहत, खेल समेत हर शोबे में पंजाब हुकूमत ने इस्लाहात मुतारिफ करवाई हैं। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फैसल मुमताज़ राठौर ने दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद का दौरा किया और मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों पर काम की रफ्तार का मुआयना किया। रिपोर्ट करेंगे अदील अहमद खान। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर ने वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने के बाद पहली मरतबा दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद का दौरा किया। वज़ीर आज़म ने मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों का मुआयना किया। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू के दौरान वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने कहा कि मुजफ्फराबाद रियासत का चेहरा है। इसकी बेहतरी के लिए तमाम तर वसाइल बरोए कार लाएंगे। उन्होंने कहा कि ट्रैफिक के मसाइल को हल करने के लिए जामे प्लान मुरतब करके इस पर अमल दरामद यकीनी बनाएंगे। उन्होंने कहा कि मानसेरा मुजफ्फराबाद मोटरवे और M4 मनसूबे समेत लोहार गली टनल का मनसूबा भी हमारी तरजीहात में शामिल है। इस शहर के लिए कुछ हम ऐसा कर सकें कि लोग इस कैपिटल को देखें कि ये एक बेहतरीन और खूबसूरत कैपिटल है। यहाँ के बेशुमार मसाइल हैं। मैं चूँकि इससे पहले लोकल गवर्नमेंट का वजीर भी था, आपने देखा उस वक्त भी यहाँ का सबसे बड़ा मनसूबा सॉलिड वेस्ट का, जो कि कितने अरसे से पेंडिंग का शिकार था, हमने उस फौरी तौर पर आते साथ ही हुकूमत में रहते हुए उसका आगाज़ भी किया। जो उसमें कमी पेशी थी वो फंड भी मुहैया किया और उसकी ओपनिंग भी कर दी। तो कोशिश करेंगे कि शहर के हवाले से कोई एक अच्छा प्लान तरतीब दे ताकि मुजफ्फराबाद के लोगों के जो मामलात और मसाइल हैं वो हल हो सकें और ये शहर एक खूबसूरत तरीन कैपिटल बने। बाद अज़ां वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर कांगो में अमन मिशन के दौरान शहादत का रुतबा पाने वाले मुजफ्फराबाद के कर्नल आसिफ अली अवान शहीद के मज़ार पर गए और फातिहा खानी की। इस मौके पर काबीना के अरकान और सियासी और समाजी शख्सियात भी वज़ीर आज़म के हमरा थीं। अदील अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुजफ्फराबाद। कराची में खवातीन की निजी यूनिवर्सिटी में कायम मुकाम चेयरमैन सेनेट सदाल खान नासिर के एजाज़ में इस्तकबालिया तकरीब हुई। तकरीब से खिताब करते हुए कायम मुकाम चेयरमैन सेनेट ने तालिबात को मुस्तकबिल के मेहमान करार देते हुए कहा कि पार्लियामेंट में भी खवातीन न सिर्फ फाल किरदार अदा करती हैं बल्कि कानून साजी के अमल में भी गहरी दिलचस्पी के साथ हिस्सा लेती हैं। यूनिवर्सिटी के चांसलर वजीहुद्दीन अहमद ने कहा कि यूनिवर्सिटी का मकसद ऐसी खवातीन लीडर्स तैयार करना है जो अपने शोबों में मुल्क की मौसर नुमाइंदगी कर सकें। और इस्लामाबाद में 24 से 27 नवंबर तक बैनुल-अक़वामी मुकाबला क्रिकेट होने जा रहा है। अब तक 40 से ज़ायद ममालिक से क़ारी पाकिस्तान आ चुके हैं। तफसील बताएंगे डॉक्टर उमर मलिक।
اسلامی تعاون تنظیم کے 40 سے زائد ممالک کے قرآ 24 سے 27 تک اسلام آباد میں اپنی خوش الہانی سے دلوں کو مسرور کریں گے۔ یہ ایمان افروز بین الاقوامی مقابلہ قرت ملک میں اس معیار کا پہلا ایونٹ قرار دیا جا رہا ہے۔ مقابلے میں اعلیٰ کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والوں کے لیے انعامات اور اعزازات کا اہتمام بھی کیا گیا ہے۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کوارڈینیٹر مذہبی امور سید صداقت علی نے کہا کہ دنیا بھر سے آنے والے قاری حضرات کے لہجوں اور انداز میں نوجوانوں کے لیے استفادے کا بہترین موقع ہے۔ پاکستان میں کافی دیر سے یہ کوشش تھی کہ یہاں پر بھی ایسے مقابلے ہوں تاکہ ہماری جو یوتھ ہے، نوجوان نسل ہے، ان کو قرآن پاک کے ساتھ جوڑا جائے۔ حکومت پاکستان نے یہ پروگرام پلان کیا ہے۔ اس میں OIC کے ممبرز کنٹریز جو ہیں وہ تشریف لا رہے ہیں، اور وزارت مذہبی امور کو یہ شرف حاصل ہوا ہے سردار یوسف صاحب کو، ہمارے وزیر مذہبی امور، کہ ان کی قیادت میں یہ انٹرنیشنل کمپٹیشن ہونے جا رہا ہے۔ اب تک تقریباً 40 ممالک جو ہیں وہ اس میں تشریف لا رہے ہیں۔ جوائنٹ سیکرٹری مذہبی امور احمد ندیم نے کہا کہ انٹرنیشنل مقابلہ قرت سے پاکستان کا مثبت امیج دنیا میں اجاگر ہوگا۔ اس پورے پروگرام کے ذریعے سے انشاءاللہ تعالی نہ صرف ہم قرآن پاک کا جو پیغام ہے اور قرآن پاک کا جو مقصد ہے اس سے ہم پاکستانیوں کو، اور یہ ہمارے جو انٹرنیشنل لوگ آ رہے ہیں ان کو روشنات کرائیں گے، بلکہ ہم اس سے پاکستان کا ایک سافٹ امیج اور پاکستان میں جو اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزیں دی ہیں اس سے بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ان کو پاکستان کے بارے میں کافی جو ہے وہ انفارمیشن جو ہے وہ دے سکیں۔ بین الاقوامی مقابلہ قرت کی تیاریاں اپنے آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہیں۔ مختلف ممالک سے قاری حضرات بھی پاکستان پہنچ چکے ہیں۔ ڈاکٹر عمر ملک، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ لاہور میں کنسٹرکٹیو تھنکرز نیٹ ورک کے زیر اہتمام آج کا پاکستان ترقی کے امکانات کے عنوان سے سیمینار ہوا۔ تفصیل بتا رہے ہیں لاہور سے محمد شکیل ملک۔ اہم قومی اور بین الاقوامی امور پر ہونے والا یہ سیمینار مختلف شعبوں سے وابستہ ماہرین اور تجزیہ کاروں کی کہکشاں ثابت ہوا، جس میں ملکی معیشت، خارجہ امور اور دفاع سمیت اہم معاملات پر سیر حاصل گفتگو کی گئی۔ سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے ایئر کموڈور ریٹائرڈ خالد چشتی نے کہا کہ بھارتی حالیہ جارحیت کے خلاف ہماری پالیسی دفاعی تھی، جس سے پوری دنیا پاکستان کی دفاعی صلاحیتوں کی معترف ہوئی ہے۔ سابق سفیر شوکت عمر نے پاکستان کی علاقائی اہمیت سمیت پاک چین تعلقات اور سی پیک کے تناظر میں ترقی کے امکانات پر روشنی ڈالی۔ سابق سیکرٹری داخلہ تسیم نورانی نے گڈ گورننس کو یقینی بنانے کے لیے مؤثر انتظامی ڈھانچے، فعال سول بیوروکریسی کی اہمیت پر زور دیا۔ CTN کے چیئرمین مسعود علی خان نے اہم قومی اور عالمی امور پر اس طرح کے سیمینارز اور مباحثوں کا سلسلہ جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا۔ کلائمیٹ مینجمنٹ پہ کیا ہوا ہے، ہم نے چائلڈ ڈیولپمنٹ میں 2-3 سیمینارز کیے ہیں، تو وی ہیو بین ویری لکی ٹو ڈو مینی برننگ ٹاپکس جو کہ پھر ہم کسی طریقے سے کنسرنڈ لوگوں تک، گورنمنٹ تک پہنچا دیتے ہیں۔ اس موقع پر ماہرین نے اہم امور پر تجاویز پیش کی اور حاضرین کے سوالات کے مدلل جوابات بھی دیے۔ محمد شکیل ملک، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ اور ناظرین، ملک میں موسیقی کے فروغ میں PTV کا کردار روز روشن کی طرح عیاں ہے۔ لاتعداد گلوکاروں اور موسیقاروں کو PTV نے اپنی صلاحیتوں کا اظہار کرنے کا موقع دیا۔ لاہور سے شمال شبیر کی رپورٹ دیکھیے۔ پاکستان ٹیلی ویژن نے اپنے آغاز سے ہی جہاں معیاری پروگرامز کے ذریعے اہم معاشرتی موضوعات کی عکاسی کی، وہاں موسیقی کے شعبے میں ترقی میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ اس حوالے سے PTV کا یہ ترہ امتیاز ہے کہ اس نے نہ صرف موسیقی کے ذریعے شائقین کے دلوں کے تار چھیڑے، بلکہ موسیقی کے بحر بے کنار سے کئی گوہر نایاب بھی نکالے جو آج بھی سنگیت کے افق پر جگمگا رہے ہیں۔ کلاسیکی موسیقی ہو یا غزل گائکی، پاپ میوزک ہو یا فوک، PTV نے موسیقی کی ہر صنف پر گہرے نقوش چھوڑے۔ کلاسیکی اور غزل گائکی میں استاد غلام علی، امانت علی خان، مہدی حسن، پرویز مہدی، خورشید بیگم، ملکہ موسیقی روشن آرا بیگم، فریدہ خانم، اقبال بانو، حامد علی خان اور اسد امانت علی خان جیسے گلوکاروں کے پروگرام آج بھی شائقین کے لیے بیش بہا خزانہ ہے۔ ملکہ ترنم نور جہاں نے PTV کے پروگرام کا دامن بیش بہا گیتوں سے بھر دیا۔
ए नैयर, मसूद राना, अहमद रुश्दी, गुलाम अब्बास, तरन्नुम नाज और नाहिद अख्तर ने भी पीटीवी के जरिए शायकीन के दिलों पर राज किया। पीटीवी को ये एजाज भी हासिल है कि इसने मुल्क में पॉप म्यूजिक मुतारिफ कराने में आलमगीर, नाजिया हसन, जुहेब हसन, मोहम्मद अली शेखी और सज्जाद अली जैसे गुलकारों को प्लेटफॉर्म फराहम किया। सुरों के शहंशाह नुसरत फतेह अली खान ने अपना आखिरी कलाम भी पीटीवी पर ही रिकॉर्ड करवाया। पाकिस्तान टेलीविजन ने हमेशा नए गुलकारों की हौसला अफजाई की और ये इदारा मौसीकी के फरोग की रिवायत को आज भी आगे बढ़ा रहा है। शुमाइला शब्बीर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। फैसलाबाद में पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के सरकर्दा ज़रई तहकीकी मरकज़ न्यूक्लियर इंस्टीट्यूट फॉर एग्रीकल्चर एंड बायोलॉजी के ज़ेर एहतमाम नेशनल फील्ड डे का इन्नकाद किया गया। तफसील जानेंगे काशिफ मुनीर से। फील्ड डे के मौके पर ज़रूरी साइंसदानों, मुहक्किकीन, माहिरीन ज़राअत, किसानों और तलबा ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर मुनक्किदा सेमिनार से खिताब करते हुए मेंबर साइंस पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन डॉक्टर शकील अब्बास रूफी ने कहा कि तेलदार अजनास की पैदावार में इजाफा न सिर्फ किसानों के लिए माशी फायदे का बायस बनेगा बल्कि फूड सेफ्टी और ज़रूरी मईशत को भी मजबूत बनाएगा। डायरेक्टर जनरल एग्री एंड बायोटेक प्रोफेसर डॉक्टर यूसुफ सलीम ने निजाब के किसान दोस्त तरबीती कोर्स के इनेकाद को खुशाइंद करार दिया। निजाब की डायरेक्टर डॉक्टर उज़मा मकबूल, नेशनल फील्ड डे के ऑर्गेनाइजर डॉक्टर महमूद अल हसन समेत दीगर माहिरीन ने शुरका को तेलदार फसलों की बेहतर नशोनुमा, मौसमी हालात के मुताबिक काश्त, बीमारियों के तदारक और जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से मुतल्लिक आगाह किया गया। शुरका ने तजर्बाती खेतों का भी दौरा किया। ऋण की काश्त है, ऋण के बारे में वैरायटीज हैं और सस्मी के बारे में जो वैरायटीज हैं उनकी किसान भाइयों को आगाही के लिए ये प्रोग्राम नायाब में नेशनल फील्ड डे ऑन हाई वैल्यू ऑयल क्रॉप है ना, हमने एक रोज़ा तरबीती वर्कशॉप और ज़मींदार भाइयों को पूरे पाकिस्तान से मदऊ किया था। तो ये आज हम इनको फील्ड में लेके आए हैं। मैं तिलों पे काम कर रही हूँ। तिलों में मैं जो हूँ उसकी जेनेटिक डाइवर्सिटी पे काम चल रहा है और ये जो है ना किसानों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। मुख्तलिफ सेमिनार से पता चलता है हमें ये मुख्तलिफ सेमिनार अगर करवाएंगे तो इससे अवेयरनेस इंक्रीज होती है उस क्रॉप के लिए। तो इसका बीज जो तमाम ज़मींदार हैं जिनके ज़मीनें खाली पड़ी हैं, जिनको बाकी फसलात से कोई फ़ायदा हासिल नहीं होता, तो ये फसल लगाएं, ये सबसे अच्छी फसल है। शुरका ने फील्ड में नई अक़साम की कारकर्दगी, तहकीकी नताइज और जदीद मशीनी आलात का अमली मुशाहिदा किया। नेशनल फील्ड डे का कामयाब इनेकाद पाकिस्तान में ज़रूरी तहकीक, नई तेलदार फसलों की तरक्की और किसानों की फनी रहनुमाई के लिए अहम पेशरफ साबित होगा। काशिफ मुनीर, पीटीवी न्यूज़, फैसलाबाद। कराची में 2 रोज़ा अदब फेस्टिवल का आगाज हो गया। तफसील बता रहे हैं हसन नासिर सिद्दीकी। मेले में इल्म अदब और फ़नून लतीफ़ा से दिलचस्पी रखने वालों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। पैनल डिस्कशन में मारूफ अदीबों और शोरा ने तारीख़ अदब और सखाफ़त पर रोशनी डाली। मेले के शुरका ने फेस्टिवल के इनेकाद को सराहते हुए कहा कि ऐसे मेले शहर क़ायद के लिए खुशगवार हवा के झोंके से कम नहीं। मैं चाहती हूँ कि कराची में ऐसे ही और फेस्टिवल हो ताकि सबको खुशी मिले और सब इंजॉय करें। हम अपने कल्चर को, अपने ट्रेडिशन को, अपने लिटरेचर को इस इवेंट है इसके थ्रू प्रमोट करते हैं। उर्दू लिटरेचर से इतना कनेक्ट होते हैं, यहाँ पर आके राइटर्स हैं, यहाँ पर इतने सबकी स्पीचेस हैं, आपके कनेक्शंस बनेंगे, आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को, समझने को मिलेंगी। अदब फेस्टिवल अदब के शायकीन के लिए एक बेहतरीन, तवाना और दिलचस्प तजुर्बा है। MQM पाकिस्तान के रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार ने मेले में खुसूसी शिरकत की। अदब के बगैर कोई भी मुल्क, कौम और माशरा मुकम्मल नहीं है। अगर मुल्क, कौम और माशरा जज्ब या जिस्म है तो उसकी रूह अदब है। ये अदब फेस्टिवल का इनेकाद मुल्क, कौम और माशरों के इस्तेहकाम, मजबूती और तरक्की के लिए ज़रूरी है। मेले में मारूफ अदीबों की कुतुब, बच्चों के अदब के अलावा दीगर मौज़ूआत पर किताबें रखी गई थीं, जबकि रिवायती लिबास और जायके भी मेले की रौनक बढ़ा रहे थे। 2 रोज़ तक जारी रहने वाले 10वें अदब फेस्टिवल में किताबों पर तबसरा, मुशायरे, फिल्म स्क्रीनिंग, तस्वीरी नुमाइश, थिएटर और दीगर मौज़ूआत शामिल हैं। ये फेस्टिवल नौजवान नस्ल को किताब और मुकालमे की रवायत को फ़रोग़ देने के साथ साथ माशरती हमआहंगी, तनक़ीदी सोच और सखाफ़त को उजागर करने का बेहतरीन ज़रिया है। हसन नासिर सिद्दीकी, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, कराची। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी पेशावर में ख़वातीन की टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग के शोबों में शमूलियत के फ़रोग़ के लिए विमेन इन टेक 2025 ब्रेकिंग बैरियर्स बिल्डिंग फ्यूचर्स के उन्वान से तक़रीब हुई। रिपोर्ट कर रही हैं अल्फा निगार। यूईटी पेशावर में मुनक्किदा तकरीब में इंजीनियरिंग, IT, सरकारी इदारों और बिजनेस सेक्टर से मुतल्लिक़ ख़वातीन ने शिरकत की, जिन्होंने अपने पेशावराना तजुर्बात, कामयाबियों और दरपेश चैलेंजेस पर रोशनी डाली। वाइस चांसलर यूईटी पेशावर
प्रोफेसर डॉक्टर सादिक खटक ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि टेक्निकल तालीम के जरिए ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना मुल्क की माशी तरक्की के लिए नागुज़ीर है। उन्होंने कहा कि वुमेन इन टेक को एक बैनुल-अक़वामी सोसाइटी के तौर पर रजिस्टर्ड किया जाएगा। आज वुमेन इन टेक इंटरनेशनल यूएन की जो सोसाइटी है उनका एक प्रोविंशियल चैप्टर हम लॉन्च करने जा रहे हैं, वुमेन इन टेक यूईटी पेशावर। इस प्लेटफॉर्म से उनको इंटरनेशनल लाइजोनिंग में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। शुरुका ने यूईटी पेशावर की काविशों को सराहते हुए कहा कि आईटी और टेक्नोलॉजी में लड़कियों की मयारी तरबियत के लिए ऐसे प्रोग्रामों की मजीद तौसी वक्त की ज़रूरत है। सबसे पहले तो ये आता है कि हमारे पास इंजीनियरिंग में इतनी सारी लड़कियां हैं, हमारे पास आर्किटेक्ट्स हैं जो इतनी वर्ल्ड की रिकॉग्नाइज्ड किस्म के आर्किटेक्ट्स हैं, और देखा जाए तो हमारे पास बहुत अच्छी कोडिंग वगैरह भी कर रही हैं, वो कंट्री को एक बहुत नेक्स्ट लेवल पर लेके जा सकती हैं। लड़कियां डिग्री तो कर लेती लेकिन जॉब नहीं करती, तो जब वो लड़कियां यहाँ पर लाइक जो सक्सेसफुल वुमेन्स को देखेंगी तो उनको ये रियलाइज़ होगा कि सिर्फ डिग्री ही करना लाइक वो ही एक नहीं है, उसके बाद आगे भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये लड़कियों को एम्पावर करने के लिए है और लोगों को बताने के लिए है कि वो भी इंजीनियरिंग में आए। पैनल डिस्कशंस के दौरान मुकर्रिरीन ने कहा कि ख़वातीन को जदीद टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ने के लिए एतमाद और मसावी मौक़े की ज़रूरत है, और ऐसे प्रोग्राम न सिर्फ उनकी सलाहियतों को उभारते हैं बल्कि उन्हें पेशावराना मैदान में फ़ाल किरदार अदा करने के काबिल भी बनाते हैं। इस तरह की सरगर्मियों के इनेकाद से न सिर्फ ख़वातीन में खुद एतमादी का जज्बा पैदा होता है बल्कि उन्हें जदीद टेक्नोलॉजी के शोबों में आगे बढ़ने का हौसला भी मिलता है। अल्फा निगार, PTV न्यूज़, पेशावर। वेदर अपडेट में खुशामदीद। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि शिमाली इलाकों में शदीद सर्द रहेगा। पंजाब के मैदानी इलाकों में चंद मकामात पर हल्की स्मोग और धुंध छाए रहने का इम्कान है। अगले चंद रोज के दौरान शिमाली इलाकों के दिन और रात के दर्जे हरारत में मजीद कमी का इम्कान है। रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जे हरारत लय -6 और स्कर्दू में -5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। खेलों की खबरों में आपको खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त देकर IBSF स्नूकर टीम वर्ल्ड कप के फाइनल में जगह बना ली। मस्कत में जारी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने 1 के मुकाबले में 3 फ्रेम से फतह समेटी। पाकिस्तानी टीम मोहम्मद आसिफ और असद इकबाल पर मुश्तमिल थी। इंडिया 1 टीम पंकज अडवाणी, आदित्य मेहता और ब्रजेश दमानी पर मुश्तमिल थी। फाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला हांगकांग, चाइना से होगा। 3 मुल्की T20 सीरीज के तीसरे मैच में पाकिस्तान ने श्रीलंका को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। मैच PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया गया। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में श्रीलंका ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया और 20 ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर 128 रन बनाए। श्रीलंकन ओपनर्स ने तेज खेलते हुए टीम को 3 ओवर्स में 31 रन का आगाज दिया। पैटर्न निशांका ने 17 और कमल मिशारा ने 22 रन स्कोर किए। कौशल परेरा ने 25 और जैनत क्लियानिच ने नॉट आउट 41 रन की इनिंग्स खेली। पाकिस्तान की जानिब से मोहम्मद नवाज ने 4 ओवर्स में 16 रन के एवज 3 विकेटें हासिल की। सलमान मिर्जा, फहीम अशरफ और अबरार अहमद के हिस्से में 1-1 विकेट आई। पाकिस्तान ने 129 रन का हदफ 15.3 ओवर्स में 3 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। ग्रीन शर्ट्स की इनिंग्स की खास बात साहिबजादा फरहान की धुआंधार बैटिंग थी। उन्होंने 45 गेंदों पर 80 रन बनाए और नॉट आउट रहे। साहिबजादा फरहान ने 5 छक्के और 6 चौके लगाए। उन्होंने रवां साल T20 क्रिकेट में छक्कों की सेंचुरी भी मुकम्मल कर ली। साइम अयूब 20, बाबर आजम 16 और सलमान अली आगा 0 पर आउट हुए। श्रीलंका की जानिब से दुश्मंथा चमेरा ने 2 विकेटें अपने नाम की। मोहम्मद नवाज प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। Once again, and he can hit the ball straight as well. And fittingly, it is down the ground. Doesn't make it all the way, but doesn't matter. The boundary from Farhan seals the victory. कौमी वनडे टीम के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी इंजरी का शिकार हो गए। PCB के मुताबिक शाहीन शाह अफरीदी के पांव में चोट आई है और वो मेडिकल टीम के ज़ेर निगरानी है। शाहीन शाह अफरीदी की दस्तियाबी के हवाले से फैसला मेडिकल टीम की जानिब से क्लियरेंस पर मुनहसर होगा। एशेज सीरीज का पहला टेस्ट 2 रोज में ही खत्म हो गया। ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। पर्थ में खेले गए मैच में इंग्लैंड की टीम पहली इनिंग्स में 172 रन पर आउट हुई, जिसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया 132 रन पर आउट हो गया। इंग्लैंड को पहली इनिंग्स में 40 रन की बढ़तरी हासिल हुई।
लेकिन वो बढ़तरी का फायदा न उठा सका और दूसरी इनिंग्स में 164 रन पर आउट हो गया। ऑस्ट्रेलिया को मैच जीतने के लिए 205 रन का हदफ मिला, जो उसने तेज खेलते हुए 28.2 ओवर्स में सिर्फ 2 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। ट्रेविस हेड ने जारहाना इनिंग्स खेलते हुए सेंचुरी स्कोर की। उन्होंने 83 गेंदों पर 123 रन की इनिंग्स खेली, जिसमें 4 छक्के और 16 चौके शामिल थे। मानस सेबस्टियन 51 रन पर नॉट आउट रहे। मिचेल स्टार्क ने मैच में मजबूरी तौर पर 10 विकेटें हासिल की। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच करार दिया गया। 5 मैचेस की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को 1-0 की बढ़तरी हासिल है। एशेज सीरीज पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाई जा रही है। That sounded good. It's very, very good. Oh, it's high. Up in the air. Pope settles underneath. Taken. Secured. Teaser for Archer, but it's 4 more for Marnus. Marnus goes big. It's big indeed. All the way. A win for Australia. A remarkable win, a memorable win, perhaps a famous win. On the back of Mitchell Stark, setting it up with 10 wickets. And a master. गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने ओवर 40 T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप की इफ्तिताही तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए गवर्नर सिंध ने कहा कि बैनुल-अक़वामी मास्टर्स क्रिकेट मुकाबले में 12 ममालिक की टीमों का कराची में जमा होना आलमी सतह पर नई तारीख रकम करेगा। ओवर 40 T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, जनूबी अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, श्रीलंका, जिम्बाब्वे, अमरीका, कनाडा, हांगकॉन्ग, UAE, सऊदी अरब और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की टीमें शरीक हैं। लिया की पहचान चैंपियन बॉक्सर मोहम्मद अली के एजाज में ज़िले दफ्तर पुलिस पर पुरवकार तकरीब मुनक्किद की गई। एशियन वेल्टरवेट का टाइटल जीतने पर पुलिस अफसरान और सिविल शख्सियात ने मोहम्मद अली को खिराज तहसीन पेश किया। तकरीब के शिरका ने चैंपियन बॉक्सर को पंजाब कल्चर की रिवायती अजरक और कुल्ला पहनाया। पुलिस अफसरान और मुअज़्ज़ज़ मेहमानों ने बॉक्सर को तहाइफ और कैश प्राइज पेश किए। लिया पुलिस की तरफ से मोहम्मद अली को एजाजी शील्ड भी पेश की गई। इस मौके पर बॉक्सर मोहम्मद अली ने कहा कि एशियन वेल्टरवेट का टाइटल लिया के शहरियों के नाम करता हूँ। DPO मोहम्मद अली वसीम, इंस्पेक्टर इनामुल हक और लिया पुलिस का सपोर्ट करने पर बेहद मशकूर हूँ। मोहम्मद अली ने फाइट में भारतीय हरीफ को शिकस्त देकर एजाज अपने नाम किया था। छठे इस्लामी जगरियाती गेम्स रंगारंग तकरीब के साथ सऊदी अरब में इख्तिताम पजीर हो गए। मेडल्स टेबल पर तुर्की ने अपनी हुक्मरानी साबित की। तुर्की 155 मजमूई मेडल्स के साथ पहले नंबर पर रहा। तुर्की ने 72 सोने, 44 चांदी और 39 कांसे के तमगे जीते। उज़्बेकिस्तान ने 94 मेडल्स के साथ दूसरी पोजीशन हासिल की। उज़्बेकिस्तान ने 29 गोल्ड, 35 सिल्वर और 32 ब्रोंज मेडल जीते। ईरान 81 मजमूई मेडल्स के साथ तीसरे नंबर पर रहा। मेजबान सऊदी अरब ने 57 मजमूई तमगों के साथ चौथी पोजीशन हासिल की। पाकिस्तान ने इवेंट में 5 तमगे जीते, जिनमें 1 सोने, 1 चांदी और 3 कांसे के तमगे शामिल थे। इस्लामी जगरियाती गेम्स पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाए गए। न्यूजीलैंड ने वेस्ट इंडीज को वनडे सीरीज में क्लीन स्वीप कर दिया। हैमिल्टन में खेले गए तीसरे और आखिरी मैच में न्यूजीलैंड ने 4 विकेटों से कामयाबी हासिल की। वेस्ट इंडीज की टीम पहले बैटिंग करते हुए 36.2 ओवर्स में 161 रन पर आउट हो गई। रॉस्टन चेज 38 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। न्यूजीलैंड के मैट हैंडी ने 4, जेकब डफी और मिचेल सेंटनर ने 2-2 विकेटें हासिल की। कीवीज ने 162 रन का हदफ 31वें ओवर में 6 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। मार्क चैपमैन 64 रन के साथ नुमायां बल्लेबाज रहे। माइकल ब्रेसवेल ने 44 रन की नॉट आउट इनिंग्स खेली। वेस्ट इंडीज की जानिब से मैथ्यू फोर्ड और जेडन सील्स ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। मैट हेनरी मैच और काइल जेमिसन सीरीज की बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। Down the pitch, crushed for. It's on the lap of Zach Folks. It will just trickle its way down. एशिया कप राइजिंग स्टार्स का फाइनल कल पाकिस्तान शाहीन्स और बांग्लादेश ए के दरमियान खेला जाएगा। दोहा में होने वाला मुकाबला शाम 7:30 बजे शुरू होगा और पीटीवी नेशनल पर बराह रास्त दिखाया जाएगा। इवेंट में पाकिस्तान शाहीन्स अब तक नाकाबिले शिकस्त है। सेमीफाइनल में पाकिस्तान शाहीन्स ने श्रीलंका ए को 5 रन से शिकस्त दी। बांग्लादेश ए ने इंडिया ए को सनसनीखेज मुकाबले के बाद सुपर ओवर में हरा दिया। Cheeky, effective shot. खेलों की खबरों के साथ ही खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज।